रौनक जी, आपने जो प्री सीन मटेरियल पढ़ा उसको थोड़ा पूरे क्लास को समझाइए। क्या पढ़ा अपने लैंग्वेज में? You said na Ronak ji, you have read the pre-scene material? Yes sir, pre-scene material read once. So आपने pre-scene material क्या पढ़ा वो थोड़ा बताइए। बिकॉज नंदन जी तो नहीं पढ़ा है, उनका दिमाग मेरे को दिख ही रहा है जैसे वो बोल रहे हैं। बट नंदन, यू ऑलवेज से दैट सर नाउ आई विल फॉलो, बट नेवर यू आर फॉलोइंग सर। वाई सर? क्या रौनक जी बोलेंगे क्या? टाइम तो वेस्ट नहीं करो मेरे भाई। बोलता ही नहीं है यार, हट। सो yes, this is the SEMA pre-scene material for May-August 2023. One thing before proceeding, I teach operational case study for August and February, and I teach management and strategic case study for May and November. Because May and November, when I teach management and strategic case study, there is no possibility, no bandwidth to teach operational case study also. Because managing 3 case study in one go is very difficult, because it is not something which is technical, it's very practical. So that requires a whole lot of study, notes preparation, going through the things. So I cannot manage all the 3 case study together. So now when I am teaching operational case study for August, again I will be teaching operational case study for February 2024, not for November. And now for August I am not teaching management and strategic case study for August. Their classes, if they want to do, they can do recordings of May 1. So you need to understand, if you don't give exam now, you can prepare if you the classes, then only in February 2024. ठीक है? ये मैं पहले से ही बोल देता हूँ always सबको. So this is the case study which is for May and August exam. It is about a Trax Europe. The Trax Europe is a company, you can see the tractor. They are making tractors. And those tractors are mainly used in agricultural activity. In agriculture करने में tractors को लैंड को फ्रिल करने में, जोतने में यूज होता है. इट्स नॉट दैट द ट्रैक्टर्स आर यूज फॉर दैट पर्पस ओनली, बट दिस कंपनी ट्रैक्स यूरोप इज मेकिंग ट्रैक्टर्स which are sold to those who are in the agricultural activity. The language said by them, they are engaged in designing, manufacturing and selling tractors for agriculture purpose. एग्रीकल्चर में काम आता है वो ट्रैक्टर्स ये लोग बनाते हैं. कंपनी कहां पे है? यूरोप में है. यूरोप लिखा हुआ ही है. नेम ऑफ द स्टेट दे हैव रिटन सम टी लैंड और समथिंग. Whenever they are using the name of the company, name of the place, anything, all hypothetical. This is all case study write-up, each practical companies only, but they are using hypothetical name, imagination name. So there is no tea land and all that in the world, but still they are using the word कि tea land में हम लोग हैं. Now this company is a subsidiary company of a big group called Agri Group. Not divisions, subsidiary. Subsidiary means एक अलग से सेपरेट कंपनी है और उस कंपनी का शेयर पूरा का पूरा मेरे पास है. So there is an agri group. That agri group is the, you can say, owner or managed company, but that agri group has two subsidiary.
One is this Trax Europe, which is in Europe, and one is Trax America, which is in America. The American subsidiary company is focusing on American market, Australia, New Zealand and Asian markets. And the Trax Europe is focusing on European market. यूरोपियन मार्केट के लिए उन्होंने एक सब्सिडी बनाया है ट्रैक्स यूरोप, और अमेरिकन मार्केट के लिए ट्रैक्स अमेरिका. वी आर कंसर्न विद ट्रैक्स यूरोप, वी आर नॉट कंसर्न विद ट्रैक्स अमेरिका. नो इंफॉर्मेशन गिवन. It is just given that there is a big company who has created this Trax Europe company, and this Trax Europe company is managing the European market. What is the way by which they are doing their business? They are making tractors. For the tractors we require cabs. The cabs are purchased from our another subsidiary. There may be another subsidiary from whom we are purchasing cabs. Then we are making, you can say, engine. Tractors ka engine. Then we are making the body, chassis, the body painting and all that. And then we are making the entire tractor by assembling all the parts, different other parts purchased from the suppliers. And then those tractors, after being made, they are being tested that they are meeting the quality standards and all that. That is our manufacturing process. We are not selling tractors directly to consumers. We are selling tractors to consumers through dealers. So normally गाड़ी वगैरह यही सब डीलर से थ्रू ही बिकता है. आज मारुति का गाड़ी खरीदना है तो मारुति का डीलर के पास ही जाना होगा. मारुति कंपनी डायरेक्टली गाड़ी नहीं बेचती. अगर मैं मारुति से डायरेक्टली कनेक्ट भी करूंगा तो वो लोग डीलर का मेरे को कनेक्ट करा देंगे. जितना भी गाड़ी कंपनी है वर्ल्ड में, वेदर इट्स हुंडई, होंडा और एनी कंपनी, दे आर सेलिंग कार्स थ्रू डीलर्स. सिमिलरली ट्रैक्टर्स, वैसे इंडिया में महिंद्रा भी ट्रैक्टर बनाता है, एंड दे आर सेलिंग थ्रू डीलर्स. सो देयर इज नो डायरेक्ट सेल B2C. द सेल बिजनेस मॉडल इज B2B. The tractors Europe making tractors, selling to the dealers, and then the dealers are selling to the final agricultural consumers, farmers, you can say. Now, for promoting our tractors, for promoting our product, marketing and all that, what is the way by which customer know about our tractors? कैसे पता चलिए कस्टमर को? तो कस्टमर क्या करते हैं? या तो कस्टमर डीलर का जो शोरूम है वहां विजिट करते हैं, या हम लोग का वेबसाइट है वहां पर हम लोग नया नया वेबसाइट पे फोटोज और वेबसाइट को बढ़िया बनाते रहते हैं, और या हम लोग कोई एग्जीबिशन वगैरह होता है वहां जाते हैं. ट्रैक्स यूरोप गो देयर एंड पुट एन एग्जीबिशन देयर, तो वहां पर जो लोग आते हैं वो लोग देखते हैं. दीज आर द 3 ways by which we are doing marketing of our products. But then if a customer directly connect with the Trax Europe, then in that case that customer is passed on to the respective dealer, and the dealer will communicate with the customer. Tracks will be given, tractors will be given to the customers by the dealer when we will be giving to the dealer. यानी कि बिजनेस मॉडल इज B2B सेल. मान लीजिए मन में सोचा जा सकता है क्या B2C हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे ही सोचिए मन में. देयर इज नो आंसर रिटन एनीवेयर फॉर दिस. यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इनफ कि भाई वी आर नॉट डूइंग B2C सेल, व्हाट विल बी द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ गोइंग थ्रू B2C सेल. आपके लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देता है वो लोग, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर जनरली शुड बी आस्क्ड विथ हायर लेवल स्टूडेंट्स, मैनेजरियल लेवल एंड स्ट्रैटेजिक लेवल स्टूडेंट्स. B2B B2C हुआ ना, नहीं समझा मैं. मान लीजिए आप लोग मेरे पास क्लासेस ज्वाइन किए डायरेक्टली हमारे से कनेक्ट करके, लेकिन मैं बोला कि मेरी क्लासेस डायरेक्टली आप मेरे से नहीं ज्वाइन करेंगे, हमने किसी को एजेंसी दे दिया और हमने बोला वो एजेंट से ही आप बात करके एजेंट पूल में आपको लाएगा, फिर हम आपको क्लासेस देंगे. तो यहां पर डीलर नेटवर्क है. आप अगर गाड़ी मारुति का खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी मारुति का मारुति कंपनी से आप नहीं खरीद सकते. आप अगर डायरेक्टली मारुति को मेल करेंगे, मारुति को कॉल लगाएंगे, मारुति वाला आपको डीलर से कनेक्ट कर देगा. मान लीजिए मैं कोलकाता हूं तो कोलकाता कोई डीलर से कनेक्ट करा देगा मेरे को. लेकिन आप ऐसे क्यों लिखना चाह रहे हैं B2B B2C? B2C मत लिखिए, खाली B2B. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैक्स. ट्रैक्स इज अ B2B बिजनेस मॉडल कंपनी. They are selling to dealers, business to business.
अब डीलर कंज्यूमर को बेच रहा है, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ रहे मेरा? नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को लैंग्वेज पढ़ के। तो मैं ऐसे ही बोल रहा था कि मान लीजिए हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को बोलने बेचने लग जाएं, डीलर्स को हटा दें, उससे फायदा होगा नुकसान होगा, ऐसा चीज आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उसको और लोअर लेवल पे ले जाके देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चंस। लोअर लेवल्स मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर मार्केट में आपके पास 10 कस्टमर्स आया, वो 10 कस्टमर्स लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को आपसे डायरेक्टली चाहिए, हम डीलर से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, हमको कंपनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखना है, लेकिन आपका सर्विसिंग वगैरह सब कुछ डीलर करता है। तो अब अगर आप ऐसा करेंगे तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, you will fight with the dealers, you are destroying their market, they will cancel your dealership, then in that case it will be a different problem for which you may not be ready, because dealers के थ्रू काम करने से आपका बहुत सारा ऑपरेशंस बच जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करेंगे ऑपरेशंस बहुत अलग तरह पे चला जाएगा। तो आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत डिटेल में क्वेश्चन ऑपरेशनल लेवल में नहीं पूछेगा, लेकिन एक फीलिंग जरूर आता है। मार्केटिंग हम लोग क्या तरह से कर रहे हैं, थ्रू शोरूम, dealer showroom, through website, and through what do you say, exhibitions. Is there any other way we can do marketing? We are doing marketing of our products, the tractors, by these 3 means. Is there any other way we can do marketing? क्या लगता है? अदर वे मार्केटिंग मतलब मान लीजिए फेसबुक, लिंक्डइन, सोशल मीडिया जो भी है, वहां पर वी विल बी डूइंग पेड एड्स, दैट इज ऑल्सो अ मार्केटिंग थिंग, और वी विल बी आस्किंग द डीलर्स टू डू दैट। मे बी वी कैन से दैट वी कैन पुट होर्डिंग्स, अलग अलग जगह जहां पर फार्मर वाला एरिया है वहां पर वी कैन डू फूड होर्डिंग्स। और क्या कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, मे बी वी कैन से दैट टू सम ऑफ द फार्मर्स we can give the tractors for free। मेरे को ये चीज कैसे याद रहता है, मेरे रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ा है आपने? हैव यू रेड रिच डैड पुअर डैड? उसके अंदर क्या बोलता है कि वो एक पर्सन होता है जो बैलून बेचता है, वो बैलून कोई लेने नहीं आ रहा है, तो बैलून जो थोड़ा सा बैलून स्काई में ऐसे ही उड़ा देता है, लोग देखने लगते हैं, बच्चा लोग इंटरेस्टिंग होता है, और देन इन दैट केस दे स्टार्टेड बाइंग। सो नॉर्मली आपको मार्केटिंग स्किल सीखना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं डिमांड कर रहा है तो आपको उड़ाना पड़ता है। तो नॉर्मली आप कुछ ट्रैक्टर्स कहीं पर कोई पर्टिकुलर मार्केट में जहां बहुत सारा फार्म लैंड है, 1-2 ट्रैक्टर ऐसे ही दे दीजिए। यू विल बी सफरिंग कि आपका पैसा कुछ नहीं आया और गया, लेकिन दैट विल बी क्रिएटिंग अ मार्केटिंग कि भाई इसका ट्रैक्टर तो बहुत बढ़िया है, अदर्स विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रोडक्ट्स। You can do marketing through the celebrities, maybe sportsman, maybe hero, heroine and all that, those actor, actresses. By that way you can market. भाई जो दिखता है वो बिकता है। Influential marketing. कोई कुछ पूछ, you understand नंदन? For this, where you will read any answer, sir? कहीं से कुछ मिलेगा थोड़ी ना। You need to become practical. Business case study है ये सब। ये कोई टेक्निकल केस स्टडी नहीं है कि आपको ट्रैक्टर में ये पार्ट्स कैसे लगेगा, ये नट बोल्ट कैसे लगेगा वो बताना है। इट्स अ बिजनेस केस स्टडी। कोई भी जगह से कुछ भी आ सकता है, आप कितना क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। आई मीन टू से दैट देयर आर सम मार्केटिंग मेथड्स दे आर डूइंग, वी कैन सजेस्ट सम अदर मार्केटिंग मेथड्स सो दैट आवर डिमांड विल इंक्रीज, सेल्स विल इंक्रीज, कंपनी विल ग्रो, दैट वी कैन सजेस्ट टू आवर फाइनेंस मैनेजर एंड अदर्स। That is about production, marketing and sales. Now, they have made their sales team. The sales team are dealing with the dealers. For Europe, there is a separate sales team. For South Europe, for North Europe, 3 अलग-अलग 3-4 टीम बताया है। टीम के अंदर एक सेल्समैन मैनेजर है, उसके अंदर 3-4 लोग काम कर रहे हैं। वो लोग डीलर के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, उनका प्रॉब्लम दूर करते हैं, उनको नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको प्राइसिंग में हेल्प करते हैं और उनको हर तरह का सपोर्ट देते हैं। इवन दो वी आर नॉट डायरेक्टली सेलिंग टू द कंज्यूमर्स,
बट फिर भी डीलर को तो हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज डीलर इज देयर इन द मार्केट हु इज सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स, सो वी हैव सेल्स टीम टू कनेक्ट विद द डीलर्स। सप्लाई चेन में ऐसा है कि हम लोग रॉ मटेरियल्स वगैरह सर्टिफाइड सप्लायर से खरीदते हैं, दोज हु आर एथिकल सप्लायर्स। फॉर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, स्टील एंड पेंट, वी हैव सिंगल सप्लायर्स, देयर इज नो बंच ऑफ सप्लायर्स वी आर डीलिंग विथ। वी आर डिसाइडेड दैट दीज सप्लायर्स, सप्लायर को बहुत सारा डाइस वगैरह देना पड़ता है, बिकॉज ट्रैक्टर्स आर, वी आर मेकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स, सो फॉर डिफरेंट ट्रैक्टर्स देयर इज अ डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट साइज चाहिए, तो हम लोग सप्लायर्स को पहले से वो देते हैं, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाते हैं। We are giving training to our staff, we are training them, we are using, what do you say, robots, mechanic technology to make the robots, and we have a best system of checking our output. जब आउटपुट बन जाता है तो उसको बढ़िया से बढ़िया तरह से हम लोग चेकिंग करते हैं, so that the tractors are of the best quality. हर जगह अलग अलग प्रोसेस जो है, like there is a engine process, then there is a chassis process, then there is a body building process, then there is assembly process, and then there is a testing finishing process. अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब जगह अलग अलग प्रोसेस में काम होता है, स्टाफ लोग को ट्रेन किया जाता है, काम किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, प्रोडक्ट बढ़िया से बढ़िया बने। फिर डीलर, हम लोग प्रोडक्ट तभी बनाते हैं जब कस्टमर से ऑर्डर आता है। जब डीलर के पास कोई फार्मर ऑर्डर देता है, उसके बाद डीलर हम लोग को बोलता है, हम उसको ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग ट्रक माने ट्रैक्टर बनाकर हम लोग डीलर को देते हैं, एंड देन द डीलर इज गिविंग टू द कस्टमर। सो नॉर्मली फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज नॉट देयर वेरी हाई बिकॉज इट इज ऑर्डर बेस्ड, बट देन द रॉ मटेरियल्स एंड अदर कंपोनेंट पार्ट्स, सब असेंबलीज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर देयर इन द इन्वेंट्री। हम लोग जब डीलर लोग को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जनरली वी आर ऑफरिंग 30 days क्रेडिट, but some of the dealers are taking more than that, those who have a long relationship selling good, और हम लोग का एवरेज व्हाट डू यू से रिसीवेबल पीरियड, रिसीवेबल से पैसा 38 days में आ रहा है। वी आर परचेजिंग आवर गुड्स फ्रॉम द सप्लायर्स एट अ क्रेडिट पीरियड ऑफ अराउंड 60 plus. That means we are taking more and more credit from our suppliers. Maybe if it is not affecting our business, it's okay, but if it is affecting our business adversely, then in that case उससे भी प्रॉब्लम होती है, because we are not getting the suppliers concentration, they are not giving proper discount, they are not giving prior importance to us. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ध्यान देना है। Then we can say that we have in our team members, I am talking about directors, we have around 4,200 employees working in different department divisions. We have one single factory where we are producing all the tractors, one big space, one of the biggest factory in Europe for manufacturing tractors. Then we can see that we are producing broadly 3 types of tractors. In 3 tractors, one is lower capacity, one is medium capacity, and one is very high capacity. 3 types of tractors we are making. The first, in all the 3, there are 3 categories. That means 3 into 3, 9. Broadly 3 products, but in every product there are 3 categories. Normal, super, premium. They have written some different names, but अलग अलग 3 category बनाया हुआ है। हर एक का आपको कॉस्टिंग डिटेल दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है। यस, बेसिक, रेगुलर, प्रीमियम सर, हर एक का आपको सेल प्राइस दिया हुआ है, हर एक का कॉस्ट डिटेल्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट इज द मार्जिन वी आर गेटिंग, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिटेल्स आर गिवन। In every department, when we are calculating costing for every product, we are using absorption costing method. That means for every department, for fixed cost, for variable cost, we have calculated rate. In most of the departments, it is labor hour rate, but in one of the department, it is machine hour rate. Labor hour rate we use where laborers are more. Machine hour rate we use where machines are mainly used more. सो पर आवर हमने रेट निकाल कर रखा है, बेस्ड ऑन दैट वो रेट से बेसिस जितना जिस प्रोडक्ट में लेबर आवर, मशीन आवर लगता है, उसके बेसिस पे वी हैव कैलकुलेटेड द कॉस्टिंग. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, बेस्ड ऑन लेबर आवर, मशीन आवर, एंड उसके बेसिस पे जो कॉस्ट पर यूनिट आता है, मार्जिन वगैरह जोड़कर हम प्रोडक्ट का सेल प्राइस डिटरमाइन करते हैं. हम लोग डीलर्स लोग को थोड़ा सा लेवे देते हैं, हीवे देते हैं कि भाई वो लोग कमती दाम में भी बेच सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके साथ होता है.
और जो हमारे सेल्समैन हैं वो सेल्समैन का रेम्यूनरेशन फिक्स के अलावा व्हाट ट्रैक्टर्स दे आर सेलिंग, हाउ मच रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. Questions will be based on core areas, sir, because in 1 month we will be completing all core areas. जो मैंने आप लोगों को WhatsApp के अंदर जो शेड्यूल दिया है, जो मेल किया है, क्या हो रहा है यार, उसमें मैंने बकायदा पूरा शेड्यूल बना दिया है कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे. एक बार फिर से वो शेड्यूल खोल रहा हूं. WhatsApp में कल दिया, मेल मैंने 2 बार आप लोगों को किया, 10-15 दिन पहले और कल फिर से मेल किया. कोर एरिया ये जानकर कोई फायदा नहीं है. कोर एरिया है, क्वेश्चन उसी पे आएगा. कॉमन सेंस डेवलप करना है. अगर कॉमन सेंस डेवलप करेंगे तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. कॉमन सेंस डेवलप कैसे होएगा? केवल लिख के प्रैक्टिस करने से. बस एक ही तरीका है, यू कैन डेवलप कॉमन सेंस इफ यू प्रैक्टिस इन राइटिंग. एक बात मैं बोल रहा था, रौनक जी भूल गया. अगर आप असाइनमेंट्स E1 E2 माने E1 P1 F1 का नहीं किए हैं तो एग्जाम की स्टडी देने नहीं मिलेगा. कर दिए तो ठीक है, नहीं है तो अभी 10-15 दिन अभी भी हाथ में है. असाइनमेंट सॉल्व कर दिए E1 P1 F1 का, क्या भाई? माने इतना बदमाशी क्यों कर रहे हो यार? उस समय तो ठीक थे तुम. 6 महीना में सारा बर्बादी आ गया क्या? माने अभी सारा काम करेंगे. अब एक काम करते हैं, 10 दिन खाएंगे नहीं और 10 दिन बाद एक ही दिन में सारा खा लेंगे. गड़बड़ बात है यार. नॉट डन सर. ये मैंने आप लोग को शेड्यूल बनाकर पहले ही दे दिया है ना. आप बोलेंगे नहीं दिया है तो मैं प्रूफ कर दूंगा. सब तरह से दिया है मैंने, हर तरह से. लेकिन कोई मेरा बात सुनता नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूं. सुनेगा तो बात ही क्या है यार, टेंशन ही नहीं होएगा. सो व्हाट आई सेड, 24 को देखिए इंट्रोडक्शन एंड प्री सीन. मैं कोर एरिया ABCD की आज बात ही नहीं कर रहा. करेंगे जितना हद तक हो सकेगा. कोर एरिया A और B करेंगे 1 जुलाई. कोर एरिया C और D करेंगे 8 जुलाई. कोर एरिया E और F करेंगे 15 जुलाई. 15 जुलाई तक पूरा नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है. तो 22 जुलाई को भी कोर एरिया E और F अगर बाकी रहेगा थोड़ा बहुत करेंगे और कुछ मॉक पेपर डिस्कस करेंगे. फिर 29 जुलाई को मॉक टेस्ट लेंगे. फिर 5 अगस्त को डाउट्स लेंगे. यही शेड्यूल है हम लोग का. ये शेड्यूल है. ये मैं आप लोग को 15 दिन से दे रहा हूं. मेल में दिया, अलग अलग दिया, बार बार अलग अलग तरह से मैं देते जा रहा हूं आप लोग को. ठीक है ना. तो कोर एरिया क्या है बाद में बात कर रहे हैं, अभी एक बार आगे बढ़ते हैं भाई. सो व्हाट आई वाज टेलिंग दैट रिलेटिंग टू salesman, the salesmen are given remuneration bonus based on what sales they are generating through the dealers, so that they are incentivized. मार्केट में ट्रैक्टर्स के अंदर बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है. खासकर यूरोप में द पीपल आर मोर कंसर्न विथ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ पावर. You can say solar energy, wind energy, biodegradable energy, biogas energy and all that. And then there are different markets where they want more automation. That means there should not be any human beings required to operate the tractor. It can be done automatically through the remote control or something like that. Driverless technology, all these things are developing in the world. So in this thing, we need to be ready. We need to develop our products. Otherwise, we will be losing sustainability. We will be losing our market share and we will be losing our business. तो धीरे धीरे करके जब मार्केट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो हम लोग को एक्सेप्ट करना है. हम लोग को ये भी देखना है बिकॉज मार्केट में सपोज द ट्रैक्टर्स आर यूज्ड, वन ट्रैक्टर कैन बी यूज्ड फॉर 5 years. We need to see that how the life cycle of the tractor can be increased in place of 5 years, 7 years, 10 years. Because the people, farmers are very much concerned that they need to replace it less. Replacement कमती होने से क्या होएगा? माने environment is also protected. The resources which are used in the tractor, they will be used for a longer period. वो लोग ज्यादा दिन के लिए यूज होंगे तो environment can be protected. Production will be done just for, not for replacement, but for use in the major period.
ट्रैक्टर को बनाने में जो भी तरह का पार्ट्स मशीनरीज वगैरह यूज होता है, हाउ दे कैन डिसमेंटल, how you can dismantle the tractor when life is over and you can use the different parts for many other purpose. That thing is developing in the market. Recycling of more and more things. कि जो भी चीज ट्रैक्टर में लग रहा है, अगर वो उस पर काम नहीं आ रहा है, खराब हो गया, उसको कहीं ना कहीं और यूज किया जाए. The fossil fuel consumption should be less. Or you can see that we are not selling tractors for other purpose, but other than agriculture, we can easily go into selling tractors for other purpose. Tractors for taking goods from one place to another, tractor for cutting grasses, tractor for what do you say, transportation. बहुत सारा चीज में tractor use होता है. So why we are concentrate? Maybe that is, you can say, specialization. We are only making tractors for selling in the agricultural activity. But उसके अलावा तो और भी बहुत सारा यूसेज है ट्रैक्टर्स का जिसको यूज किया जा सकता है. कल मैंने जो आप लोग को वीडियो दिया था, उसमें एक वीडियो, दो वीडियो है जिसमें दो महिंद्रा का ट्रैक्टर बन रहा है, फैक्ट्री दिखा रहा है उसमें कैसे ट्रैक्टर बनता है, हाउ इट पास फ्रॉम डिफरेंट. बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग इन द प्री सीन मटेरियल, द टेक्निकल लैंग्वेज इज लेस टू अंडरस्टैंड. और एक बाहर की कंपनी, यूरोप की कंपनी, उसका ट्रैक्टर बन रहा है. और एक और तीसरा वीडियो जो मैंने दिया है उसमें यूसेज ऑफ ट्रैक्टर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर. दोज थ्री वीडियोस. अब यूट्यूब में जाके हजारों वीडियो नहीं देखना है, वो तीन वीडियो काफी है. वट एवर इज रेलिवेंट फॉर यू बेस्ड ऑन द प्रीसीन मटेरियल दैट इज शेयर्ड विथ यू. तीनों वीडियो मिलाकर कुछ 25 से 30 मिनट है. एक बार तीनों वीडियो को देख लेना चाहिए, so that when you will start writing your answers, you will be able to correlate whatever written in the pre-scene material. और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है pre-scene material में? I can say financial statement, P&L account, balance sheet, cash flow statement for last 2 years. December 2021, December 2022. Revenue has gone up by around 7%. Cost has gone up by less than 7%. The gross profit margin has improved. Operating profit margin has improved. So financial PL account is very good. Balance sheet के अंदर भी कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. केवल जस्ट यू कैन से करंट रेशियो, क्विक रेशियो आर वेरी लो. बट इफ स्टिल दे आर लो, जैसे मेरे बिजनेस में भी लो मतलब नेगेटिव ही आएगा. मेरा बिजनेस में करंट एसेट्स आर लेस देन द करंट लायबिलिटी. बिकॉज हम लोग को डेली स्टूडेंट ज्वाइन करता है, कोई ना कोई पैसा देता है, तो हमें इतना ज्यादा करंट एसेट्स रखने की जरूरत नहीं है. इन्वेंट्री हमारे पास है नहीं, रिसीवेबल है नहीं, तो मेरा तो करंट लायबिलिटी ज्यादा ही रहेगा ना. देयर आर बिजनेस नेचर. हियर इन आवर केस इट्स नॉट लाइक मी. They have inventory, they have receivable, but still their current liabilities are greater than current assets. You can see that they are paying to their suppliers very late, but they are getting money from customers and they are managing their cash in a better way. But maybe it is not good for the business. Maybe the suppliers are dissatisfied. They will not be giving us at discount, and in future that problem may arise. ठीक है ना. मैं इसको एक एक लाइन रीड नहीं करता हूं कभी भी कोई बैच में, बिकॉज बहुत बोरिंग लगता है. एग्जाम में जब आप जाएंगे तो एग्जाम में ये प्री सीन मटेरियल का टैब रहेगा. जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में ऐसे पेपर खुलेगा, वेदर इन एग्जाम, होम और घर से, जैसे भी, रेफरेंस प्री सीन. यू सी, रेफरेंस मटेरियल मींस नीचे वाला जो स्लाइड है, दिस यू कैन सी दैट ऑन द अपर ओनली बाय क्लिकिंग दिस रेफरेंस मटेरियल. एंड प्री सीन मतलब पूरा का पूरा प्री सीन. एनी टाइम यू क्लिक, अभी नहीं होएगा बिकॉज दिस इज पीडीएफ फाइल. दिस इज जस्ट सेइंग दैट हाउ द पेपर प्रेजेंटेशन इज देयर इन द एग्जाम. ये प्री सीन मटेरियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आप एग्जाम में कभी भी खोल के देख सकते हैं. बट एग्जाम में प्री सीन मटेरियल बार बार खोल के देखना मतलब आपका पढ़ाई हुआ ही नहीं. For that reason, you need to read 2-3 times this pre-scene material. I have said synopsis, summary of the pre-scene material. मैंने यहां summary लिखकर भी दिया हुआ है, अभी नहीं दिया. वैसे I mean to say that Nandan, when you joined at that time, I gave this to you. Maybe you have not studied anything, but भाई हाथ जोड़कर विनती है, अगर मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तो नहीं होएगा. आपको मेरी बात एकदम 1-to-1 माननी होएगी. अदरवाइज मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाऊं. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. सीधा सीधी बोल रहा हूं भाई.
तो इसमें ऑपरेशनल केस स्टडी है। ऑपरेशनल केस स्टडी में overview of the pre-scene. This is overview of the pre-scene. This I am reading for you. I will be sharing this material again in the sense for Nandan, but रौनक वगैरह के लिए तो पहला बार ही होगा, मैं शेयर करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। This is not written by me. This is given by सीमा इंस्टीट्यूट, some material given by Kaplan, some prepared by me also. तीनों मिक्स्ड है। ये नहीं है कि एक एक लाइन मैंने लिखा है, कुछ मेरे को कापलान से मिला है, 12-13 साल से उनसे कनेक्टेड है, सीमा इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, कुछ अपने बनाए भी है, सारा मिक्स्ड है यहां पर, ठीक है। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ द इंटायर प्री सीन मटेरियल। द प्री सीन इंफॉर्मेशन कंसर्न्स अ कंपनी कॉल्ड ट्रैक्स यूरोप दैट डिजाइन, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स इन यूरोप। डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल, डिजाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर सेल करते हैं। एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स मतलब हम कोई दूसरा कैटेगरी का ट्रैक्टर्स डील नहीं कर रहे, हम लोग केवल एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स में ही डील करते हैं। एंड वी आर सेलिंग इन यूरोप। बिजनेस मॉडल मतलब हम कैसे बनाते हैं, कहां से मटेरियल खरीदते हैं, कैसे सेल करते हैं, दैट इज बिजनेस मॉडल। फाउंडेड इन 1960, द कंपनी इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल एग्री ग्रुप। ग्लोबल एग्री ग्रुप का ट्रैक्स यूरोप इज अ सब्सिडियरी and serves the European agricultural tractor market. Tractor sales in the America, Australia, New Zealand and parts of Asia are handled by a different subsidiary that is Trax America. हम लोग को इसके बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। हम लोग का केस स्टडी है ट्रैक्स यूरोप। ट्रैक्स अमेरिका अलग से सब्सिडी है दैट इज डीलिंग फॉर ट्रैक्टर्स फॉर डिफरेंट मार्केट। क्वालिटी सपोर्टेड बाय मेकिंग, हाउ वी आर मेकिंग क्वालिटी ट्रैक्टर्स. So how we are achieving the quality that they are saying. Quality supported by making their own engines using cabs from another agri subsidiary, using trusted suppliers for parts. मतलब हम लोग कैब्स दूसरी सब्सिडियरी से लेते हैं, इंजन खुद बनाते हैं, ट्रस्टेड सप्लायर से पार्ट्स, कंपोनेंट, सब असेंबलीज लेते हैं, स्किल्ड लेबर को यूज करते हैं, रोबोट्स वगैरह को यूज करते हैं प्रोसेस में, प्लांट और स्टील प्लेट्स और पेंट सिंगल सप्लायर से लेते हैं, अप्रूव्ड सप्लायर से लेते हैं, डाई टूलिंग वगैरह, और फिर उसके बाद एक्सटेंसिव क्वालिटी चेकिंग करके हम डेवलप करते हैं। तो ये सब करने से क्वालिटी बनती है, ऐसा ट्रैक्टर बनता है जो दूसरे जगह नहीं मिलेगा। ऑल सेल्स आर मेड बाय थर्ड पार्टीज डीलर्स। हम लोग खुद सेल कुछ नहीं करते, सब डीलर के थ्रू सेल होता है। फार्मर्स can find out about Trax Europe products by visiting dealer showrooms, visiting the Trax Europe website or making inquiries at stands at trade shows. ये तीन तरीका है हम लोग का। इंडस्ट्री ट्रेंड, द ग्लोबल ट्रैक्टर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 4.2% इन कमिंग 10 years. प्री सीन में लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर मार्केट इन द वर्ल्ड विल ग्रो बाय 4.2%, dominated by 5 major companies. This tractor market is dominated in the world by 5 companies. सब मोटा मोटी सेल उन्हीं का है। Within Europe, key trends are an increasing demand for smart technology and alternative power sources. यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना और अदर देन फॉसिल फ्यूल, अदर देन डीजल के बजाय दूसरा पावर से ट्रैक्टर को चलाना, ये बहुत फेमस हो रहा है यूरोप में। अ वाइडर ट्रेंड इज टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग ट्रैक्टर लाइफ। अगर लाइफ मान लीजिए ट्रैक्टर का 5 साल है, 7 साल 10 साल कर दिया जाए तो इन दैट केस रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होएगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी सिस्टम। प्री साइकिलिंग, प्री साइकिलिंग का मतलब होता है यू कैन से कौन सा पार्ट्स कहां से लें, किसको यूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा चले, खराब ना हो, दैट इज कॉल्ड प्री साइकिलिंग। और उसके बाद जब ट्रैक्टर खराब हो जाए उसको और दूसरा काम में लगा पाए। राइट टू रिपेयर एंड डिजाइनिंग इन ईज ऑफ असेंबली। अगर मान लीजिए ट्रैक्टर खराब हो जाए तो रिपेयर करने के लिए हम लोग डायग्राम वगैरह दे दें, बना दें, जिससे कि वो लोग अपने आप रिपेयर कर पाए, फार्मर्स किसी के पास जाना नहीं पड़े। और अगर खराब हो जाए तो उसको डिसअसेंबल अपने आप कर पाए, पार्ट्स वगैरह यूज हो पाए। इन सब चीजों पे दुनिया में रिसाइकलिंग, पावर यूसेज, ये सब के ऊपर फोकस चल रहा है पूरे दुनिया में।
ट्रैक्टर बनाने में. दीज ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोटर कार ऑल्सो. टेस्ला का मोटर कार, अभी मोदी जी वहां गया तो एलन मस्क क्या कर रहे हैं, भाई हमको इंडिया में आने दो. सारा इलेक्ट्रिक कार उनका दुनिया में बिक रहा है, इंडिया में नहीं बिक रहा है. वेयर एज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर कार. तो कार के अंदर भी ये सब टेक्नोलॉजी है. ट्रैक्टर ज्यादातर बहुत सारा वर्ल्ड का कार कंपनी ट्रैक्टर बनाता है, बिकॉज इंजन वगैरह ट्रैक्टर में जो लगता है वो कार जैसा ही लगता है. ट्रैक्स यूरोप करेंटली है जो 20% शेयर ऑफ द मार्केट शेयर. यूरोप में 20% ट्रैक्टर हम ये लोग बेचते हैं. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू ग्रू बाई 7% फ्रॉम 21 to 22, resulting in an increase of 21.5% in the operating profit. A rise in the operating profit margin by 7.7 to 8.7%. 1% more. 1% you can say only one. But percentage mat dekhiye. 1% amount will be very high. Overall profit 159 million. The terms of working capital and liquidity, we have 35 million increase in the cash. Even though we have paid good amount of dividend, but still we have good amount of cash. Whenever you are cash rich, that means the tension is there less in life. So the company is a cash rich company. The 2023 budget assumes a further growth in sales. आने वाला साल में भी हम लोग सेल ग्रोथ 7.9% मान रहे हैं. ड्यूरिंग द करंट ईयर भी ग्रोथ बाई 7%, बट आने वाले साल में इट विल बी 7.9% ग्रोथ, which seems ambitious given expected growth of 4%, possibly indicating high ambition from the board. बोलता है कि ये जो 4% ग्रोथ इंडस्ट्री में होएगा नेक्स्ट 10 ईयर में, हम लोग का ग्रोथ डबल 8%. वाई? There is no justification given in the pre-scene why you are assuming that your growth will be better than double than the industry. This is, you can say, summary about the pre-scene material. Whatever is written in 20-25 pages, that's pages summary. Now, इनका ये बोलना है, इंस्टीट्यूट का बोलना है कि आपको हम जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो ये कोर एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है. There are 6 core areas, not 5. Core area 6. First is costing, second is budgeting, third is, what do you say? I think relevant costing and decision making. Fourth is accounting. Fifth is short-term investment decisions, working capital management. And one more area, sixth is KPI, how to evaluate the performance, standard costing and all that. Performance evaluation. देखो, मान लो सीमा का स्टूडेंट लोग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार पिछले साल से 10% ज्यादा है. तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरे को भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स मिलेगा बिकॉज मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा है. लेकिन अगर सीमा का स्टूडेंट इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% कम है और मैं सोचूंगा मेरा स्टूडेंट्स लोग लास्ट ईयर से इस बार 5% 7% बढ़ेगा, कुछ लॉजिक होना चाहिए कि नहीं? लास्ट ईयर सपोज दोज हु आर टेकिंग क्लासेस, द सीमा स्टूडेंट्स आर से 1000 और इस बार सीमा स्टूडेंट्स आर 900. अर्लियर सपोज आई वाज टीचिंग 10% स्टूडेंट से 100, तो इस बार 900 का 10% 90. हाउ कैन आई से दैट आई विल बी टीचिंग 120 स्टूडेंट दिस टाइम when the total number of students are 900 and I am forecasting that I will be teaching 120 students? How come? खाली लास्ट ईयर बड़ा था इसलिए कि कुछ लॉजिक होना चाहिए कि मार्केट गिरेगा लेकिन फिर भी मैं ज्यादा सेल करूंगा, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना. मान लो मैं ऐसा बोलूंगा इंक्वायरी ज्यादा है, मान लो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स लोग पढ़े हैं वो लोग रेफरेंस बहुत ज्यादा दिए हैं, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए. कुछ लॉजिक नहीं लिखा है. There is no logic written, just one logic जो आप बोल रहे हो कि लास्ट ईयर 7% बढ़ा था तो इस बार 1% तो बढ़ेगा ही. The market is growing at the rate of 4%. We are going to grow at the rate of 8%. Last year may be exceptional. There must be some reason that why we are saying that we will be able to grow at the rate of 8%. क्या कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं? क्या कोई नए मार्केट में जा रहे हैं? क्या कोई प्राइस कम? कुछ तो होना चाहिए ना यार. वैसा बोलना चाह रहा हूं मैं. आर यू गेटिंग? मेरी बात समझ रहे हो? लॉजिक अलग भी हो सकता है. आप बोलोगे 7 से 8 ही तो हो रहा है, लेकिन यार 7 एक बार हो गया तो हर बार थोड़ी ना होएगा.
हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले बिजनेस ग्रो करेगा मार्केट ग्रो होने से। अगर एसीसीए, सीमा, सीएमए, सीपीए ये सब स्टूडेंट पढ़ने वाले लोग ज्यादा होंगे तो मेरे को स्टूडेंट मिलेगा। हम थोड़ी ना मार्केट में नहीं हम जबरदस्ती पैदा कर लेंगे, नहीं हो सकता। तो नॉर्मली आने वाले समय में कोरोना के टाइम पे और स्टूडेंट्स लोग सीमा, एसीसीए, सीएमए, सीपीए बहुत बढ़ गए, इंक्वायरीज बहुत आती है जो पहले होता था। तो मैं लॉजिक दे सकता हूं भाई कि अगर 100 लोग इंक्वायरी करते हैं तो अब 150 लोग इंक्वायरी करते हैं, अब इंक्वायरी ज्यादा आती है तो कन्वर्जन भी ज्यादा होएगा। कुछ तो लॉजिक देना होएगा ना, नॉट दैट कि मेरा 5 साल से अगर स्टूडेंट्स बढ़ रहा है तो इस बार भी बढ़ेगा, दैट इज नॉट द लॉजिक, है ना। वैसे अपना अपना बोलने का तरीका है भाई, कोई रॉन्ग तो नहीं है कि आप बोलोगे 7 के बदले 7.9 ही तो बोल रहे हैं, गलत क्या है इसमें। देयर इज नो रॉन्ग और राइट इन अ केस स्टडी एग्जाम, दैट इज आई एम सेइंग, इट्स जस्ट द लॉजिक। व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू गिव लॉजिक, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। तो वो जो 6 एरिया है, अब बिलीव करिए ये जो 6 एरिया से रिलेटेड यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मजाल है इसके बाहर एक क्वेश्चन आ जाए। जो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन सभी प्रिपेयर करेंगे, कोर एरिया ए बी सी डी 80% क्वेश्चन यही आएगा भाई। नहीं आएगा तो आप बाद में बता देना सर नहीं आया, सिनेरियो क्या होगा, क्या सिचुएशन देंगे मेरे को नहीं मालूम है, बट क्वेश्चंस यही आएगा, गारंटी है सर। तो कोर एरिया ए में कॉस्टिंग रिलेटेड एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रैक्स यूरोप करेंटली हैज ए ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम centered on 5 cost centers. Each has 2 absorption rates, fixed overhead rate, variable overhead rate. अगर हम लोग ये जो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन है उसके बदले एबीसी लगाएं, उसका फायदा, घाटा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, गारंटी आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपके वेरिएंट में होगा कि नहीं हमको क्या मालूम यार, दूसरे के वेरिएंट में होएगा। हर वेरिएंट में थोड़ी ना एबीसी का क्वेश्चन दिया होएगा, बट वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। अब नॉर्मली समझना होगा व्हाट इज नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट इज एबीसी, दोनों में क्या अंतर है, फायदा नुकसान, तभी तो समझ में आएगा। डिस्कस करूंगा, डोंट टेक टेंशन। दिस इज एन एरिया वी आर डिस्कसिंग बेस्ड ऑन द प्री-सीन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू गिव। देन कॉस्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, कॉस्टिंग के अंदर दूसरा टाइप का क्वेश्चन डिजिटल प्रोडक्ट कॉस्टिंग। एज फार एज वी नो ट्रैक्स यूरोप डज नॉट हैव एन ऐप, बिकॉज प्री सीड में तो कहीं भी नहीं दिया है कि हम लोग का कोई ऐप है। हाउएवर ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स कंट्रोल्ड बाय एप्स डू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। हो सकता है यूरोप में ना हो, अमेरिका में तो डेवलप हो गया है कि आप ऐप से पूरा का पूरा ट्रैक्टर से काम कर सकते हैं, आपको बैठना है, आदमी को इन्वॉल्व ही नहीं करना है। एंड दिस कुड बी स्टोरी लाइन इन द एग्जाम, बोल रहे एग्जाम में उसी के ऊपर सारा केस स्टडी दे दिया। गिवन दिस, मेक श्योर यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन कॉस्टिंग सच ऑब्जेक्ट्स and the different categories of ongoing cost, post development cost and other things. जितना भी केस स्टडी मैं लास्ट 4 साल से पढ़ा रहा हूं, हर केस स्टडी में हर स्टूडेंट को इस एरिया में प्रॉब्लम है, डिजिटल कॉस्टिंग। जबकि जब मैं समझाऊंगा, मैं बोलूंगा, आपको लगेगा इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप सोचेंगे कि जो कापलान, जो इंस्टीट्यूट ने लिखा कॉमा फुल स्टॉप हम वही लिखेंगे, तो लिखते रहिए, दैट इज योर कॉल। But understanding digital product costing is cakewalk like this. We will discuss. But digital costing से related costing of digital products question बनता है. Digital costing further. Remember that a digital costing system links internal systems with those of the suppliers, customers and the market. Trax Europe does not seems to do this, but a number of directors are keen to incorporate technologies to a greater extent. So make sure you can discuss the benefits of switching to digital costing. आजकल नॉर्मली बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है, आपको सप्लायर को ऑर्डर देना नहीं है, अपने आप उसको पता चल जाता है, उसका सिस्टम आपका सिस्टम कनेक्टेड है। Whenever there is a shortage of material, when the material which you are having is less than the quantity which should be having, सप्लायर को अपने आप पता चल जाता है, अपने आप सप्लाई कर देता है। कस्टमर का ऑर्डर कब आएगा अपने आप पता चल जाता है। अब आजकल जमाना बहुत आगे है, दिस इज एन IT एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या दुनिया में चीज आ गया है। तो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास ये है नहीं, लेकिन हम लोग को ये डेवलप करना है, बहुत सारे डायरेक्टर्स इस दिशा में सोच रहे हैं, उसका आपके कॉस्टिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा क्वेश्चन। अब ये तीनों से रिलेटेड कोई तो क्वेश्चन आएगा, बिकॉज कोर एरिया ए इज 15 to 20%। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं आएगा,
तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या डिजिटल कॉस्टिंग कोर एरिया ए. बेसिक क्वेश्चन विच इज गोइंग टू कम. व्हाट सिनेरियो आई डोंट नो. आप बोलेंगे सर सिनेरियो अलग अलग माने क्या होता है, आ रहा हूं, डोंट टेक टेंशन. द सेकेंड वन इज कमिंग, कोर एरिया बी, बजटिंग. इन्होंने लिखा है प्री सीन में वी हैव इंक्रीमेंटल बजटिंग. नंदन विल से सर व्हाट इज इंक्रीमेंटल बजटिंग, या रौनक विल से व्हाट इज इंक्रीमेंटल. बात करेंगे. वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बजट्स बनाते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच से, बट क्या हम लोग को इंक्रीमेंटल के बदले दूसरा टेक्निक अप्लाई करना चाहिए? वेदर वी शुड अप्लाई जीरो बेस्ड बजटिंग, व्हाट विल बी द एडवांटेज डिसएडवांटेज, वेदर इट विल बी लॉजिकल और नॉट. क्वेश्चन आ सकता है. बजट प्रिपरेशन, हम लोग बजट बनाने के लिए खाली टॉप के जो पर्सन है वही सोचते हैं, जूनियर लोगों से कुछ नहीं पूछते, उनको इन्वॉल्व नहीं करते. दैट मीन्स वी आर मेकिंग अ बजट विच इज टॉप डाउन, विच इज व्हाट आई शुड से, एक और लैंग्वेज बोलते हैं टॉप डाउन को, इंपोज्ड बजट, इंपोज्ड स्टाइल. But can we incorporate junior managers? We can involve them in making budgets, preparing budgets. We can make a participative budgets. करें ना करें, फायदा नुकसान उसका क्या होएगा. क्वेश्चन उसके ऊपर भी आ सकता है. बजटिंग है तो इन्हीं से आएगा ना. बजटिंग के अंदर फोरकास्टिंग, if we can forecast what will be the demand, how much material we should purchase, if this is going to be demand, what should be the price, what will be the revenue. दुनिया में फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है. विदाउट फोरकास्टिंग आप कोई बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकते. तो फोरकास्टिंग का जो अलग अलग टेक्निक होता है, अभी जो मैं यहां पर खोला था, ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन इज फोरकास्टिंग ओनली. सीजनल वेरिएशन ट्रेंड एनालिसिस इज फोरकास्टिंग ओनली. यानी कि फोरकास्टिंग के ऊपर क्वेश्चंस आता है, आ सकता है, आएगा. दिस इज रिलेटिंग टू बजटिंग, फोरकास्टिंग, द मेथड ऑफ डेवलपिंग बजट्स, पार्टिसिपेटिव और टॉप डाउन बजट. आप कोई भी पेपर खोल लीजिए पास्ट टर्म का, यही सब क्वेश्चंस है. तो आप बोलेगा नंदन जी सर क्वेश्चंस और कहां से? अरे यार सब तो प्रैक्टिस करेंगे सब भाई. एक ही सेकंड में कैसे बोल दे, आस्ते आस्ते धीरे धीरे. परफॉर्मेंस एनालिसिस. Performance analysis means evaluating the performance of department, divisions based on variance, based on KPI, based on critical success factors. बोलेगा what is KPI? What is critical success factors? आपने बोला कि यूरोप फॉलोज, तो फिर तो आप ये स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन और एबीसी के डिफरेंस नहीं समझते ना. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग अलग अलग होता है. एब्जॉर्प्शन अलग है, एबीसी अलग है. यानी कि रौनक जी कुछ पढ़ाई नहीं किए 6 महीना में, अच्छा बात नहीं है सर. मान लो नंदन बोलेगा तो ये बात चलेगा, लेकिन आपको तो 6 महीना से वीडियो वगैरह दिया हुआ है. इतना बदमाशी क्यों किए 6 महीना तुम यार, तुम तो अच्छा है यार. कोई टेंशन नहीं है, अभी भी 40 दिन 45 डेज अच्छे से. सीमा करने से कोई लॉटरी लगने वाला है क्या? कोई कोर्स करने से हम लोग के पास कोई आने वाला है, लो भाई 500 करोड़ रुपया लो, ऐसा होने वाला है? कुछ नहीं. कोई भी कोर्स करने के लिए ये नहीं सोचना है कि मेरे को जॉब कितना का मिलेगा, मैं क्या करूंगा. कोर्स करने से ज्ञान बढ़ता है. कोर्स को ज्ञान के लिए करना है. बाई प्रोडक्ट है, इनकम इज अ बाई प्रोडक्ट. मैं अगर सोचूंगा सीमा पढ़ने से क्या होगा, तो फिर मैं पढ़ा कैसे रहा हूं. हर आदमी का अलग अलग पर्पज है पढ़ने का. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इसके बदले ये मिलेगा. बट आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है, इसीलिए मैं 12 पास आउट को पूरा सब्जेक्ट पढ़ने बोल रहा हूं. बिकॉज नंदन जी इज वर्किंग, सो प्रैक्टिकली ही इज लुकिंग एट द थिंग्स. तो वो प्रैक्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन आप तो कहीं काम नहीं कर रहे ना. तो आपको तो टेक्निकल नॉलेज बिल्टअप करना पड़ेगा, जिससे कि जीवन में काम आए. ओके, नो प्रॉब्लम. सो performance analysis based on KPI, based on critical success factor, based on variance analysis, based on some ratio calculations. Questions will come. A significant aspect of new syllabus E1 paper is, new syllabus means 2020, नया अब नहीं है, 4 साल हो गया है. Setting KPI for different parts of the business. For tracks Europe, try designing scorecard for production, sales, marketing and all. Consider whether the information would come from such exercise. बोलता है आप अगर टारगेट वगैरह सेट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन मिलेगा कहां से. हाउ यूजफुल वुड द बार कोड्स बी फॉर ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन रियल टाइम. बोलता है अगर इन्वेंट्री का रियल टाइम पता लगाना है तो हम लोग चिप लगा देते हैं, बार कोड लगा देते हैं, उससे पता चल जाएगा.
जैसे आजकल एग्रीकल्चर वगैरह में गाय वगैरह से, काऊ वगैरह से हम लोग मिल्क वगैरह निकालते हैं, उनमें चिप लगा देते हैं, काऊ का हेल्थ वगैरह सब अपने आप पता चल जाता है। इन्वेंट्री में चिप लगा देते हैं, इन्वेंट्री कितना है, नहीं है, कैसा है, खराब है, पुराना है, सब पता चल जाता है। तो बोला वो सब करने का कोई फायदा है? Particular areas mentioned in the pre-scene for focus on KPI is relating to TQM. कंपनी है जो started applying total quality management. डीलर्स, जो अलग अलग डीलर्स है, कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इवेल्युएटिंग द सेल्स टीम, जो सेल्स टीम हम लोग का डीलर लोग को सपोर्ट करता है, उन लोग में बढ़िया कौन है, कैसे कर रहा है। इफ यू डोंट प्रमोट योर बेटर स्टाफ, बेटर टीम, इफ यू डोंट मोटिवेट देम, देन हाउ द आउटकम विल कम। जो अच्छा कर रहा है उसको शाबाशी नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। A common exam task date has been discussed the types of variances. They have calculated some of the variances in the pre-scene given. But whether those variances are adequate, how they are calculated, what are the other variances we should be calculating, हर बार आता है एग्जाम में। वेरिएंस और केपीआई का क्वेश्चन कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें आता नहीं, और ज्यादातर वेरिएंट में रहता है। Organization structure, we are following functional structure. We have production department, sales department, finance department, सब अलग अलग है। Can we follow different organization structure? In place of functional, we can follow the divisional organization structure. Maybe we are developing a new tractor, a new product, a new segment. For that we can make a different division. Whether it will be good or bad, whether it should be done or not. Organization structure. These all things are part of core area C. क्वेश्चन आएगा ही। हर चीज के बारे में आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है। उसके अलावा तो वो लोग जो देगा उसको तो बोला नहीं जा सकता ना यार। हम लोग उसके लिए प्रिपेयर थोड़ी ना कर सकते हैं, पहले से सिनेरियो प्रिपेयर नहीं कर सकते। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, नॉन करंट एसेट हर बार आता है एग्जाम में। नॉन करंट एसेट फर्दर खर्चा कर रहे हैं, इंपेयरमेंट हो रहा है, कैपिटलाइज होगा कि नहीं, इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, रीवैल्यूएशन हो रहा है, रीवैल्यूएशन हाउ विल बी अकाउंटेड फॉर। एसेट्स हम लोग खरीदें कि लीज पे लें, लीज का लायबिलिटी वगैरह भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है उनका, तो लीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा ही। दीज आर ऑल नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड क्वेश्चन। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल बढ़ाएं, गिराएं, जेआईटी अप्लाई करें, ईओक्यू सिस्टम फॉलो करें, क्या करें जिससे कि वी कैन मैनेज आवर इन्वेंट्री बेटर। ई डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, रिमेंबर ऑल डिसीजंस इन द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन रेलेवेंट कॉस्ट टू कंसीडर, रेलेवेंट कैश फ्लोज टू कंसीडर। अ टिपिकल डिसीजन इन्वॉल्विंग रीजनल सेल्स ऑफिस और मूविंग टू फिनिश गुड्स वेयर हाउस। टिपिकल डिसीजन कुड इन्वॉल्व क्लोजिंग अ रीजनल सेल्स ऑफिस और मूविंग द फिनिश गुड्स वेयर हाउस। या तो सेल्स ऑफिस रीजनल बंद कर दें, हेड ऑफिस कंट्रोल करेगा, मूविंग फिनिश गुड्स वेयर हाउस, और चूजिंग वेदर टू ब्रिंग सर्विस इन हाउस। अभी हम लोग सर्विसिंग ऑफ द ट्रैक्टर करवाते हैं डीलर के थ्रू, वेदर वी कैन डू सर्विसिंग ऑन आवर ओन, मेक श्योर यू डिस्कस बेस्ड ऑन द रेलेवेंट कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग, देयर विल बी प्रोबेबली एग्जाम वेरिएंट्स दैट एक्सप्लोर डिसीजन मेकिंग अंडर कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल, इफ सप्लाई ऑफ असेंबली लेबर इज इंटरप्टेड, दिस may result in bottlenecks in production. Be prepared to discuss best approach and justify what approach is to be preferred. कि भाई आपको डिसीजन लेने के लिए केवल रेलेवेंट चीज देखना पड़ता है, इररेलेवेंट चीज को इग्नोर करना है, कौन सा रेलेवेंट है कौन सा नहीं है। हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं क्वेश्चंस वगैरह आपके साथ कराऊंगा वही तो कराऊंगा जो पास में आया है, बस उसको इस केस स्टडी के लिए मिला देंगे और कुछ नहीं करना है। द कंपनी नीड्स टू मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग आउट न्यू डिजाइन एंड सेलिंग इनटू न्यू कंट्रीज, सो एक्सपेक्ट टू डिस्कस द सीवीपी एनालिसिस। हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं 9 टाइप का, कोई रिसोर्स का कमी हो गया, ये रिसोर्स हमें कौन से प्रोडक्ट में लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना चाहिए, भर्ती करके क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। डिसीजन मेकिंग एंड द लास्ट एरिया वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, और क्या, यही तो होता है ना वर्किंग कैपिटल, पेएबल्स। Inventory relates both raw material, finished goods. Although later finished goods each probably low. It seems that many tractors are made when the order is come. The company likes to take advantage of bulk discounts for raw material. उसमें EOQ लगाएं, JIT लगाएं, नहीं लगाएं, क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। Receivables, we are entirely selling our product B2B. Currently receivable 37 days, whereas normal credit period is 30 days. How can we collect money from receivable faster? What type of other policy we should apply? What is factoring, better credit control and all that? Payables,
67 डेज में हम लोग पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट है. मे बी इट इज अफेक्टिंग आवर गुडविल ब्रांड, इट इज अफेक्टिंग आवर रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स. क्या करना चाहिए उसके लिए? कैश बैलेंस बहुत जोर का है. अगर पैसा नहीं जरूरत हो तो इन्वेस्ट करना चाहिए. वेयर वी कैन इन्वेस्ट आवर कैश. इन्वेस्टिंग ऑफ कैश क्वेश्चंस मोटा मोटी 100 में 80 बार आता है. ये सबके ऊपर आने वाला 20 जुलाई तक हम लोग बात करेंगे. 20 जुलाई तक एक एक के ऊपर. कोई चीज के बारे में पहले ही बात कर चुका हूंगा, कोई के बारे में नहीं किया, क्वेश्चन दे दिया, आप रिसर्च करेंगे, लिखेंगे, फिर मैं बात करूंगा. लेकिन 20 तारीख तक ओपन बुक प्रैक्टिस करना है, ओपन बुक राइटिंग. अगर हम लोग प्री सीन में एक बार फिर जाते, जस्ट थोड़ा बहुत एरियाज जहां पर कुछ फिगर्स है ज्यादा. These are the figures given relating to employees in different departments. How many employees are working? 4,120 employees. Yes sir, रौनक जी आप सही बोल रहे हैं जो आप लास्ट में बोले कि भाई अगर सेल्स और मार्केटिंग के लिए मेथड्स को चेंज करेंगे, न्यू सेल्स एंड मार्केटिंग मेथड्स टू सेल ट्रैक्टर्स कैन ऑल्सो कम इन डिसीजन मेकिंग. बिकॉज डिसीजन मेकिंग में अगर हम कोई नया चीज करेंगे, खर्चा क्या लगेगा, क्या आएगा, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंटल इनकम, तभी हम लोग वो डिसीजन लेंगे. तो सम डिटेल्स विल बी गिवन. यू नीड टू से इट इज रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, व्हाई इट इज रेलिवेंट, व्हाई इट इज नॉट रेलिवेंट. क्वेश्चंस केम इन एग्जाम अर्लियर. वैसा आएगा, आएगा मतलब आने का चांस है. हम थोड़ी ना बोल सकते आएगा एग्जैक्ट. इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द लास्ट ईयर टू करंट ईयर सेल्स हैज गॉन अप. The cost of sale has also gone up, but the increase in cost of sale is less than the increase in revenue. So the gross profit has absolute term gone up and percentage also better. Selling and distribution slightly gone up. Administration slightly gone up. Operating profit slightly gone up. Finance costs gone down. Finance cost कम हो गया, इसका मतलब लोन रीपे कर दिया. Profit before tax gone up. Income tax has gone up because income is more, and the profit for the year has gone up. Balance sheet में fixed assets has gone down. Property, plant, equipment less. Can we say we have sold plant and machinery because of that it has gone down? Can we say? Since we have sold plant and machinery, property, plant and equipment, for that reason it has gone down. Can we say? बोलता ही नहीं है यार. फाइनेंस कॉस्ट मींस व्हाट? इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट पिछले साल से इस बार कमती पे करना है. दो कारण हो सकता है, या तो आपने लोन फोन रीपे कर दिया, और या इंटरेस्ट रेट गिर गया. नॉर्मली इंटरेस्ट रेट गिरने का चांस तो नहीं है, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल से इंटरेस्ट रेट पूरा दुनिया में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो इंटरेस्ट रेट गिरने का तो क्वेश्चन नहीं हो सकता. सो नॉर्मली चांसेस है कि हमने लोन रीपे कर दिया. प्रूफ कैसे होएगा? यहां पर लोन का फिगर है 800, लीज है कमती. लोन और लीज दोनों ही लोन है, तो आपका लीज कम हो गया, इसलिए इंटरेस्ट कम हो गया. लोन अमाउंट तो सेम है, बट लीज इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट पोर्सन, लोन कंपोनेंट. सो लीज के ऊपर इंटरेस्ट कम जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट कम हो गया. इंटरेस्ट रेट हैज गॉन डाउन, दैट आई कांट से बिकॉज दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर. तो मेरे हिसाब से दो ही बात हो सकता है, या तो लोन इंटरेस्ट रेट हैज गॉन डाउन, और मे बी द लोन रिपेमेंट हैज बीन डन. सो लीज का लाइबिलिटी कम है, फॉर दैट रीजन इंटरेस्ट इज लेस. मैं बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर कम हो गया, when the property, plant and equipment has gone down, can we say that we have sold out for that reason? When we sell out property, plant and equipment, how we will produce more? So property, plant and equipment sell करना उचित नहीं है. Sell करके दूसरा buy करना होता है, replacement करना होता है. Maybe we can say that depreciation is greater as compared to further purchases. Because from the opening balance of 974 minus depreciation plus purchase, the depreciation amount may be very high. For that reason it has gone down. Feeling confirm कैसे होएगा? Cash flow statement देखने से पता चल जाएगा. By looking at the cash flow statement, you will come to know कि whether actually ऐसा हुआ है क्या, आगे पता चलेगा. Right to use asset. Right to use asset क्या होता है, पता है कुछ? What is right to use asset?
What is right to use asset? When we take asset on lease, when we take any asset on lease, that means we have the right to use the asset, but we are not the owner. In lease, you will be getting the right to use the asset, but you are not the owner of the asset. But the accounting body says that if you have the ownership of the asset, you will be using the asset the way you like. You will be using for the purpose the way you like. Similarly, if you are taking the asset on lease and you have the right to use the asset the way you like and all that, so you will be recording the asset in the balance sheet. Even though you are not the owner, but you will be recording the asset in the balance sheet. Accounts is prepared based on substance over form, not the legal aspect. So legally we are not the owner of the asset, but the substance says that even though if we are owner of any asset, we have the right to use the asset the way we like. Similarly, right to use asset in leasing, that is there. So we will be recording the leased asset also. Where we are having the leased asset, we will record in the balance sheet right to use asset. Right to use asset बोलकर उसे दिखाया जाता है. So property, plant and equipment ownership, right to use asset is assets taken on lease. You are not the owner, but you have the right the way you like to use the asset, and they are recorded in the books as right to use asset. उसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे आगे. पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं सब कहां कहां क्या दिया हुआ है. Then the inventory balance has gone down. The trade receivable has gone up. The payables, prepayments and other receivables, some advance payments, not big amount, but gone up. Cash and cash equivalents gone up. This is the total assets. From last year to current year, assets has gone up. Then equity and liabilities, the share capital, same. Retained earnings has gone up because last year earnings plus the profit for the year, that is total retained earnings, the total equity. Non-current liabilities, borrowings are same, but the lease liability has gone down. And then the current liabilities, trade payables has gone down slightly. Other payables has gone up. Tax liability has gone up. Lease liability has gone up in the sense slightly. This is a statement of cash flow. The profit for the year from the PL account 229. In that profit, all non-cash expenditures are added. All non-cash expenditures, depreciation, property, plant, equipment, depreciation on right to use asset, and finance cost. Why they are added? These are non-cash expenditure. We are converting profit into cash flow. Why finance cost is added? It is again deducted also. Because finance cost which is recorded in PL may not be paid. But if the same figure is paid also, then it is deducted also. The working capital, if there is credit sale, right of use asset will go down for a different reason, and lease will go down for a different reason. Right of use asset will be going down because of depreciation, but lease liability will be going down because of payment. Ronak ji, you were saying since the right to use asset has gone down, lease liability gone down. Lease liability is a payment. When you make the payment, then the liability will go down. But the right to use asset will be depreciated. That can also be. But when the lease is over, you are not, suppose this is an asset of $1 lakh value. I am recording in the balance sheet right to use asset 1 lakh. No. I am writing in the balance sheet whatever is the lease amount which I need to pay. In case of right to use asset, you are not writing the asset value in the books as asset value. You are writing the asset value till the time you are going to use it. तो जब आप एसेट वापस करोगे तो राइट टू यूज एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. द अकाउंटिंग इज नॉट, इट इज नॉट दैट यू आर सेलिंग द एसेट कि एसेट्स वैल्यू गॉन डाउन, यू आर रिसीविंग कैश. द राइट टू यूज एसेट इज नॉट रिलेटेड विद द लीज लाइबिलिटी फिगर. अगर लीज ओवर भी होएगा तो राइट टू यूज एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड ओनली. It is not a question, it is given back. Physically given back, but in the books it is not recorded at cost of the asset in the balance sheet as a right to use asset. Because in leasing we write the asset value as whatever the lease life
In that period, whatever lease rent we will pay, the present value of the lease rent. अगर कोई आपका एसेट से खरीदा हुआ ओनरशिप you are selling, then the asset will go down. But in the lease, you are not writing the cost of the asset as a right to use asset. बात समझ रहे हैं? So right to use asset is going down because of depreciation. So what I was telling, कि if there is credit sale, there is a profit, but the money is not received. So all the adjustment in the current assets, current liability done, then it is said as cash from operations. Cash from operations के बाद investment activity. Under investment activity, purchase. You see 121 is the purchase of assets. And depreciation was how much? 149. So in place of purchase 121, depreciation is higher. And since depreciation is higher, the asset value gone down. If you consider opening asset value, then plus purchases minus the depreciation, then you will get the closing value. So the decrease in the property, plant and equipment because the depreciation is more than the purchase of assets. The company paid good amount of dividend also. And there is a repayment of lease principal. Lease principal repayment होता है क्या? Relating to right to use asset, lease liability non-current, lease liability in current, I will discuss. अभी यहां पर मत सोचिए. अभी मान लीजिए लोन रिपेमेंट है, तो लोन रिपेमेंट डिविडेंड वगैरह दिया तो वो भी गया. तो आपने बिजनेस करके 301 कैश कमाया, 121 और 145 एसेट्स और डिविडेंड में लगा दिया, स्टिल 35 आपका कैश बढ़ गया, 14 पहले से था. सो द टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम्स टू 49 मिलियन. नॉर्मली रौनक जी या तो ये सोचना है कि क्लास E1 P1 F1 का जब होता है लाइव करेंगे, और अगर लाइव नहीं कर रहे तो रिकॉर्डिंग करेंगे. दोनों ही नहीं करेंगे तो फिर तो कैसे होएगा यार. तो मान लीजिए E1 का बात करते हैं, तो E1 में आप आए, फिर 1-2 क्लास बाद गायब हो गए. F1 में सेम स्टोरी, 1-2 क्लास बाद गायब हो गए. तो वो जो नॉलेज है वो तो नहीं हो पा रहा है ना. आपका दिमाग सही है, you are very good student to pass the exam because the way you written the answer last time अच्छा लग रहा था, बट फिर भी और ग्रोथ होना चाहिए ना यार, रैंक ला सकते हैं. Then they have given relating to the pre-seen material all the 3 products, their sales revenue, their cost. This is the budget prepared for 31st December 2023. कि तीनों प्रोडक्ट जो आपका A++A+ और A है, उन तीनों का सेल क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, मार्जिन क्या होएगा, सबका मार्जिन भी दे दिया. Then they are saying for A++, the first one, in the first model there are basic regular premium, तीनों का अलग अलग सेल, तीनों में ही द ब्रेकअप ऑफ 596,500 कि 596,500 में कौन सा मॉडल ज्यादा बिकेगा. देन यू कैन से सिमिलरली A++ का कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रेकअप, तीनों मॉडल जो A++ का है, व्हाट विल बी द कॉस्ट डिटेल्स, दैट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस 385 to 25 सेल्स ब्रेकअप, कॉस्ट ब्रेकअप. सिमिलरली आगे उन्होंने दूसरा का भी दे दिया, दूसरे मॉडल का भी सेल्स ब्रेकअप, कॉस्ट ब्रेकअप, तीसरे मॉडल का भी सेल्स ब्रेकअप, कॉस्ट ब्रेकअप. एंड देन फॉर अ पर्टिकुलर मॉडल दे आर डूइंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेशन. कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मटेरियल कितना लगेगा, पेंट कितना लगेगा, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंजन, चेसिस, बॉडी, मेन असेंबली, टेस्टिंग, व्हाट विल बी द लेबर आवर यूज्ड, पर लेबर आवर रेट, सब दे दिया. ये सब के बेसिस पे एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकाल कर दे दिया. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक मॉडल, अदर मॉडल का ऐसे ही निकाला गया होएगा, दैट डिटेल इज नॉट गिवन, दैट डिटेल दे हैव नॉट प्रोवाइडेड. जितना भी ऑपरेशनल केस स्टडी आता है उसमें ये सब डिटेल हर केस स्टडी में रहता है. पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन, यही रहता है हर साल, हर केस स्टडी में यही रहता है. ऐसे ही जस्ट द इंडस्ट्री इज डिफरेंट. तो क्वेश्चंस जो भी पहले पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे, फ्रीली सारा पेपर दिया हुआ, लेकिन आप पुराना पेपर अगर देख रहे हो, वो केस स्टडी अलग था, दैट इंडस्ट्री वॉज डिफरेंट. अभी ये इंडस्ट्री डिफरेंट है.
So you can check what type of question comes, but then you need to mold those questions, the write-up and everything based on this pre-seen material. आप उसके बेसिस पे नहीं जा सकते, आपको इससे कोरिलेट करना होगा. So you can read the question, you can read the answers of the past terms. आप बोलेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन उससे फायदा कम होएगा एज कंपेयर टू आप इनका आंसर लिख लिख के करोगे, इनके ऊपर राइटअप बनाओगे. अगर आपके पास मान लीजिए सपोज नंदन, I have already said 2 months back in the month of May, these questions and the answers which we will be doing in the class, don't see the solution. Apply your brain. After writing the answer, you can see the solution, no problem. अभी एकदम जेन्युइनली हम लोग को चीजों को ठीक से समझ के आगे बढ़ना है. नाउ एक काम करते हैं, सिंस लीजिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, लीजिंग से रिलेटेड जनरली समझते हैं लीजिंग होता क्या है. You don't need to pass any journal entry in exam and all that. You don't need to prepare any PL account balance sheet. But if you don't understand leasing properly, then in that case it will be difficult to write any answer if it comes on leasing. और इनका पूरा का पूरा बैलेंस शीट, PL अकाउंट सब जगह लीजिंग है. तो एक लीजिंग के बारे में जनरल डिस्कशन करते हैं. सपोज लीजिंग